Welcome to all of you in this YouTube channel of TCube 3, which is our initiative for the GATE preparation for all the GATE aspirants, especially for GATE 2022. I am Vivekanand, MTech from IIT Roorkee, having an experience of 17 years, more than 17 years of teaching and mentoring, and I am going to teach you electromagnetic theory, which is a very important subject as far as electronics and communication, electrical engineering, and instrumentation branches are concerned. So, students, let us start this particular subject with a very basic and essential topic, and that is coordinate systems. Coordinate system. There are three types of coordinate system which we have to study in electromagnetic theory. First is Cartesian coordinate system. In this Cartesian coordinate system, we have three coordinates x, y, and z. Another coordinate system is called circular cylindrical coordinate system, in which we have three coordinates rho, phi, and z. And similarly, the third coordinate system is nothing but a spherical coordinate system, and the three coordinates are r, theta, and phi. We will see all these coordinate system in detail in this particular lecture. Now the question arises in your mind, why coordinate system is so important? Because in electromagnetic theory, whenever we talk about the force, field, flux density, electric field intensity, or any kind of vector quantity, we need its representation either in Cartesian or cylindrical or spherical coordinate system. So that's why coordinate system is very important. And basically these all the systems are nothing but orthogonal system. Orthogonal system. Now, what I mean with the help of this orthogonal system, any system in which all the axes are perpendicular to each other is nothing but an orthogonal system. Like if we are talking about a Cartesian coordinate system, x, y, z all are perpendicular to each other. If I am talking about circular cylindrical coordinate system, three axes rho, phi, z and their corresponding unit vectors all are perpendicular to each other. And similarly in the spherical coordinate system, we have r, theta, phi and corresponding unit vectors are ar, a theta, a phi, all are perpendicular to each other. So in any coordinate system, when the three axes are perpendicular to each other, basically it is known as an orthogonal system. So this is I mean by orthogonal system. Okay. So I can say that all the coordinate systems are nothing but the orthogonal. ये तीनों के तीनों सिस्टम क्या है हमारे orthogonal सिस्टम. आइए अब हम डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Cartesian coordinate system. As I already told you, in this coordinate system we have x, y, z, three axes with us, okay, and all are perpendicular to each other. So here we will talk about Cartesian coordinate system x, y, z. Let me draw a diagram for this. This is an orthogonal system. Let's say this is the x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. In each axis, there is a unit vector. Like say, in x-axis, the unit vector is ax. In y-axis, the unit vector is ay, and in the z-axis, the unit vector is az. And if we are talking about the plane, how many planes are there? XY axis make an plane, XY plane, then YZ plane, then ZX plane. Three planes are there. I can say that. Suppose I want to write an expression of vector A. ठीक है, मैं वेक्टर A का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं, तो किस प्रकार लिखूंगा? तो वेक्टर A के जो कंपोनेंट्स होंगे वो तीन एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में. मान लीजिए कि वो वेक्टर के कंपोनेंट हैं AX, AY, AZ. और एक्स वाई जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास? स्मॉल ax, स्मॉल ay एंड स्मॉल az.
So this should be the way of writing a particular vector in Cartesian coordinate system. Vector A is equals to ax plus ay plus az. ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर हैं ax, ay, az। अब इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? As I already told you, this Cartesian coordinate system is nothing but an orthogonal system in which ax, ay, az all are perpendicular to each other. So definitely their dot product will be 0. Ax dot ay or ay dot az, or I am saying az dot ax, all will be meaningless. सबके सब क्या हो गए? 0. But if I am talking about the cross product, then it will follow a particular rule which is known as a cyclic order rule, ax, ay, az, और ये रूल इसमें फॉलो होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ax क्रॉस ay is nothing but az, ay क्रॉस az is nothing but ax, and az क्रॉस ax is nothing but ay। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आउटपुट तीसरा यूनिट वेक्टर होगा। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ay क्रॉस az, तो अब आप देखिए मुझे ay से az की तरफ जाने के लिए क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है, इसलिए रिजल्ट तो ax आएगा मगर कैसा आएगा? पॉजिटिव। बट सपोज आई एम सेइंग ax क्रॉस az, तो अब आप देख सकते हैं ax से az की तरफ जाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो रिजल्ट तो ay आएगा मगर नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज द रूल विच वी हैव टू फॉलो इन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। So this is Cartesian coordinate system. As far as the x, y and z axis limits are concerned, I can mention in the next slide. The limit of x is from minus infinity to plus infinity. Similarly, limit of y is minus infinity to plus infinity. Limit of z is also minus infinity to plus infinity. Okay. So all are basically infinite axis. Okay. I can say that infinite axis. इनफाइनाइट एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक सेमी इनफाइनाइट एक्सिस भी होता है, सेमी इनफाइनाइट एक्सिस। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट में हमारा मतलब होता है 0 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 0, बट इनफाइनाइट से हमारा मतलब हमेशा होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। प्लीज कीप इन माइंड। जनरल बात हम करेंगे तो हम कहेंगे 0 से इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है, फिर सेमी इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया? दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग कि in electromagnetic theory sometimes we talk about semi infinite plane, semi infinite axis, so it makes a difference. Okay, अच्छा x y z की हमारे पास लिमिट्स आ गई। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था प्लेन कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये बेसिक सी बात है लेकिन हमें इनको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, and then x, y, z all are equal to 0. What do you mean by that? If x is equals to 0, this is representing basically yz plane. Why? Because x यदि 0 हो गया इसका मतलब x में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन y और z में आप अनंत तक जा सकते हैं, इसलिए ये yz प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली y is equals to 0, इसका मतलब y एक्सिस में कोई हमारी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही हैं, तो कहाँ बन रही है पॉसिबिलिटी? x और z में, तो दिस विल रिप्रेजेंट zx प्लेन। सिमिलरली z इज इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली एक्स वाई दोनों 0 हो गया, मतलब ना आप x में जा सकते हैं ना आप y में जा सकते हैं, मगर z तो पूरा आपका है, z में आप जा सकते हैं, तो दिस विल रिप्रेजेंट z एक्सिस। एंड सिमिलरली जब y और z 0 हो गया दिस विल रिप्रेजेंट x एक्सिस, और जब z और x 0 हो गया दिस विल रिप्रेजेंट y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। ओके, and x y z तीनों 0 हो गया, you can't move in any axis, you have to stick at a particular point and this point is nothing but origin, all are familiar with this। ठीक है, तो ये origin हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जब x हमारा कांस्टेंट होगा, मान लीजिए a, y हमारा कांस्टेंट हो, मान लीजिए b, z हमारा कांस्टेंट हो, z इज इक्वल टू c, या x कांस्टेंट हो y भी कांस्टेंट हो, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, और y is equals to b, z is equals to c, or z is equals to c, x is equals to a, or I can say all the three are constant, x is equals to a, y is equals to b and z is equals to c simultaneously। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए x बराबर a यदि है, मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ,
x बराबर a है, मतलब यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू फिक्स हो गई, इतनी वैल्यू, ठीक है। अब x में तो आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन y में, y डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, z में आप जा सकते हैं, मतलब एक इस तरह का प्लेन बनेगा जो कि yz प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा। ये है आपका yz प्लेन, इजंट इट, और आप इसके पैरेलल आ रहे हैं। So I can represent this x is equals to a is representing plane parallel to yz. Y is equals to b, this will represent plane parallel to zx plane. Z is equals to c, this will represent plane parallel to xy plane. और x और y दोनों यदि फिक्स हो गए तो आप देख सकते हैं x बराबर a फिक्स हो गया, y बराबर मान लीजिए सपोज यहाँ पे b फिक्स हो गया, तो अब यहाँ तो आप जाएंगे नहीं, तो अब आप कहाँ जाएंगे, x is equals to a, y is equals to b, अब आप यहाँ मूव कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है। सो आई कैन से दैट x is equals to a, y is equals to b, this is nothing but a line parallel to z axis. एक लेटर लिखा है तो एक्सेस ही है, दो लेटर लिखे हैं x और y तो प्लेन है, और तीनों लिखे हैं तो पॉइंट, ठीक है। यानी आई कैन रिप्रेजेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड 3 एक्सेस, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड 2 एक्सेस, और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड 1 एक्सेस, ठीक है। y is equals to b, z is equals to c, this will represent line parallel to x axis, and similarly z is equals to c, x is equals to a, this will represent line parallel to y axis. And when all are given to you, x is equals to a, y is equals to b, z is equals to c, this is a specific point, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट को। तो इस तरह से हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज क्लियर टू यू। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि वेक्टर ए को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ax प्लस ay प्लस az क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात जो डिस्कस कर लेनी चाहिए, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल लेंथ? डिफरेंशियल लेंथ का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर को यदि हम स्मॉल लेंथ ले रहे हैं और उसको तीनों एक्सेस में कंपोनेंट उसके दिखा रहे हैं, तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा? तो वो वेक्टर फॉर्मेट है dl इज इक्वल्स टू dx ax प्लस dy ay प्लस dz az, ओके। This is the representation of the differential length vector. This is very important. अब इसी से बनता है डिफरेंशियल सरफेस। तो यहाँ देखिए 3 प्रकार से डिफरेंशियल सरफेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। x और y को लेके बना तो यहाँ मैं लिख देता हूँ xy, y और z को लेके मिला तो yz, और zx को लेके मिला तो zx। अब सरफेस जब बनता है, सरफेस मतलब एरिया, और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हमने देखा, आपको बताया ax ay az। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तीसरा होगा, और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे रिजल्ट तीसरा तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो आइए मैं x और y का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो dx dy, इसको तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ dx dy, बट ax क्रॉस ay, तो देखिए ax से ay जाने के लिए मुझे कैसा जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट विल बी az एंड पॉजिटिव, सो दिस विल बी az। आप कैप भी लगा सकते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप भी लगाया जाता है, कई स्टैंडर्ड बुक्स में आप पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली y और z, तो dy इंटू dz, मतलब इन दोनों का क्रॉस करना है, ठीक है। सो dy dz, और ay क्रॉस az जब आप करेंगे तो ay क्रॉस az, अगेन यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, सो द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, एंड थर्ड वन दैट इज ax, सो आई कैन राइट ax क्या। सिमिलरली ds तो z और x का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा dz dx, और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा इसमें, ay और कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें या तो डिफरेंशियल सरफेस की जरूरत पड़ने वाली है, या डिफरेंशियल लेंथ की, या डिफरेंशियल वॉल्यूम की, और कुछ एक सवालात में हम पाएंगे कि तीनों की या दो की भी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो डिफरेंशियल सरफेस को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई एम मेकिंग हेडिंग ऑन दिस साइड, डिफरेंशियल सरफेसेस। सरफेसेस इसलिए लिखा क्योंकि 3 बन रही हैं, और लेंथ इसलिए क्योंकि 1 बन रही है। हालांकि लेंथ भी अगर मान लीजिए सिर्फ हमें एक्स एक्सिस में काम है तो सिर्फ ये भी लेंथ हो सकती है,
मतलब इसको हम 7 प्रकार से लिख सकते हैं। इंटेंडेंट वेक्टर क्या है? अगर सिर्फ x से मतलब है तो dx से x, y से मतलब है तो dy y, दोनों से मतलब है तो dx से x प्लस dy y। ठीक है, तो तीनों को लेंगे अलग अलग सिंगल तो 3 प्रकार से, तीनों को एक साथ लिया तो चौथा प्रकार हो गया, और दो दो को लिया x y को y z को z x को, तो 3 और हो गए, तो 4 और 3 7 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंशियल सरफेस को इन्हीं 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। और अब आप बात समझने की कोशिश करें, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफरेंशियल वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम हमें मिलेगा डिफरेंशियल सरफेस का जब हम डिफरेंशियल लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब मिलेगा। तो आइए किसी भी डिफरेंशियल सरफेस को डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए जेड डॉट ए एक्स 0 हो जाएगा, ए जेड डॉट ए वाई 0 हो जाएगा, ए जेड डॉट ए जेड 1 हो जाएगा। सो यू विल फाइंड डिफरेंशियल वॉल्यूम इज नथिंग बट डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, और यही नहीं, अगर आप दूसरा भी लेते हैं तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होगा, बाकी एक्स डॉट ए वाई एक्स डॉट ए जेड 0 हो जाएगा। तीसरा भी लेंगे तो ए वाई डॉट ए एक्स 0 होगा, ए वाई डॉट ए वाई 1 होगा, ए वाई डॉट ए जेड 0 होगा। तो किसी भी प्रकार से आप डिफरेंशियल वॉल्यूम को लिखेंगे, जब भी लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो डिफरेंशियल वॉल्यूम आएगा डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसे हम कह रहे हैं सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे 3 बातें हैं हमारे पास, रो फाई और जेड। आइए हम इनकी पोजीशन जान लेते हैं। और जैसा कि नाम ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे हमें एक सिलेंडर से समझना होगा कि इन कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह से सिलेंडर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस ही ले रहा हूँ। ठीक है, और एक्स वाई जेड एक्सिस को लेकर के फिर मैं आपको समझा रहा हूँ उससे सिलेंडर को कैसे समझ। देखिए, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर अज्यूम किया, और ये सिलेंडर हमने इस तरह से रखा है कि सिलेंडर का जो एक्सिस है वो मान लीजिए आपकी जेड एक्सिस ही है, और बॉटम का जो सर्कल है उसका सेंटर मान लीजिए कि ओरिजिन। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब ये जो सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है, अगर ये सेंटर है ओरिजिन तो ये रेडियस हो गई, दिस इज नथिंग बट रो। ठीक है, फाई कहाँ होगा? मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर यहाँ पे ले लिया, तो ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एजिमुथ फाई। और जेड क्या है? जेड एक्सिस मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एच या जेड जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे जेड से इसको रिप्रेजेंट किया तो मैं एच भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एच बराबर जेड है, क्योंकि एच हाइट जो है मैंने जेड एक्सिस में ले रखी है। तो इस तरह से रो फाई और जेड होते हैं। तो रो क्या होता है? रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट शुड बी द लिमिट? ऑफ कोर्स 0 to infinity। ठीक है, फाई की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो फाई हमारा क्या है? फाई है एंगल ऑफ एजिमुथल एंगल। ठीक है, और जेड जो है हमारी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर को। अब यहाँ पे यदि हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो वेक्टर हमारा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? वो रिप्रेजेंट किया जाएगा डीएल बराबर डी रो ए रो, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड। अब आप सोच रहे होंगे डी रो ए रो तो समझ में आ रहा है, डी जेड ए जेड भी समझ में आ रहा है, ये रो डी फाई क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मतलब कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास डी फाई ए फाई आना चाहिए, रो डी फाई क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन साफ है, ये डिफरेंशियल लेंथ है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में, कि कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो दोनों तरफ यूनिट सेटिस्फाई होती है। तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, लेकिन फाई की यूनिट तो रेडियन है, तो कैसे सेटिस्फाई होगा? तो रो डी फाई क्यों लिखा है उसका रीजन यहाँ पे आप समझते हैं, अगले डायग्राम में मैं बना के बताता हूँ। आइए हम सिर्फ उस सिलेंडर के एक्स वाई प्लेन की बात करें। तो एक्स वाई, हम सिलेंडर के बॉटम सरफेस की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा। ठीक है, सर्किल मिलेगा, और एक्स वाई प्लेन में ये सर्किल रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस,
और ये सिलेंडर का बॉटम, ठीक है। हालांकि ये सेंटर पे नहीं आ रहा, मान लीजिए कि सेंटर है। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ओके, मैं आपको फिर से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। लेट मी ड्रॉ द सर्किल। ओके, ठीक है। ये जो सिलेंडर हम देख रहे थे, इसके मैं बॉटम सरफेस की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन है, बॉटम सरफेस की बात करूंगा तो जेड रहेगा नहीं, और बॉटम सरफेस इस सिलेंडर का क्या है, सर्किल। तो सर्किल मुझे दिखाई देगा एक्स वाई प्लेन में इस तरह से। अब ये जो वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर, ये रेडियस ही है बेसिकली, है ना, रो। ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, फाई बना रही है। तो रो इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं इसकी लेंथ, आर्क की लेंथ यदि मुझे लेनी है, तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सबने पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज आर्क? आर्क इज नथिंग बट एंगल इनटू रेडियस। ओके, तो अब देखिए एंगल क्या है मेरा, फाई। अब मान लीजिए कि मैं फाई का भी एक छोटे से हिस्से की बात करता हूं, मान लीजिए कि डी फाई, ये। तो एंगल मेरा क्या हो गया, डी फाई, और रेडियस क्या होगी मेरी, रो। तो मेरी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, रो डी फाई। बस यही कारण है कि हमने यहाँ पे जो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर दिखाया है, उसमें डी फाई ए फाई ना लेकर क्या लिया है, रो डी फाई ए फाई। यानी डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ओके, यूनिट वेक्टर्स में मैं कैप बना देता हूँ। अब ये मेरे पास डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, ठीक है। अब मैं डिफरेंशियल सरफेस बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल सरफेस तीन प्रकार से बनेगी। मान लीजिए रो और फाई से बन रही है, या फाई और जेड से बन रही है, या जेड और रो से बन रही है। उसके लिए भी रूल क्या फॉलो होगा, ए रो है, ए फाई है, ए जेड है, इन तीनों का रूल फॉलो होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव एंड थर्ड वन, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो रिजल्ट विल बी थर्ड वन बट नेगेटिव। तो आइए पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रो को मैंने आगे लिख लिया, डी रो लिख लिया, डी फाई लिख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ए रो और ए फाई का देखना है, ए रो और ए फाई। ए रो यहाँ है और ए फाई यहाँ है, ठीक है। तो आइए देखिए इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट मेरा तीसरा आएगा और पॉजिटिव आएगा, यानी क्या आएगा, यानी जब भी रो और फाई से मिलके एरिया बनेगा तो उसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा यूनिट वेक्टर का, ए जेड। यानी एरिया जो होता है वो हमेशा जिस भी प्लेन का एरिया होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये तो हम फिजिक्स से, मैथ से पढ़ते चले आ रहे हैं, डी एक्स डी वाई इंटू के वैक्टर। क्योंकि मैथ्स में हम आई जे के यूनिट वेक्टर लेते थे, तो वहीं से चला, यहाँ पे के ना लेके ए जेड ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फाई और जेड, यानी दूसरे और तीसरे को प्रोडक्ट करिए तो रो डी फाई डी जेड, यानी रो डी फाई डी जेड, और ए फाई क्रॉस ए जेड, ए फाई क्रॉस ए जेड, यानी अगेन आई एम मूविंग इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रिजल्ट विल बी ए रो एंड पॉजिटिव, ए रो, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली जेड और रो को लेके अगर हम चले तो क्या मिलेगा, हमें डी जेड डी रो और ए जेड क्रॉस ए रो, क्या मिल जाएगा हमें, ए। ओके, नाउ डिफरेंशियल वॉल्यूम यदि आप लिखना चाहते हैं तो किसी भी डिफरेंशियल सरफेस का डिफरेंशियल लेंथ के साथ डॉट कर दीजिए, और डॉट का वही रूल है, ए रो डॉट ए रो इज 1, ए फाई डॉट ए फाई इज 1, ए जेड डॉट ए जेड इज 1, और बाकी जितने हैं वो सब 0। यानी ए फाई डॉट ए रो 0, ए रो डॉट ए जेड 0, ए जेड डॉट ए फाई 0। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो देखिए पहला वाला मैं लेके बता देता हूँ, ए जेड डॉट ए रो 0, ए जेड डॉट ए फाई 0, ए जेड डॉट ए जेड 1। तो व्हाट यू विल गेट, रो डी फाई डी जेड। बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब हमें टोटल एक्यूमुलेटेड चार्ज निकालना पड़ेगा और हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, तो निश्चित तौर पे हम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल करके ही निकाल सकते हैं। अब हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, हमें वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे लिखते हैं वो हमें नहीं मालूम, तो हम उस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते, ठीक है।
तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बट इफ वी डोंट रिमेंबर व्हाट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम, व्हाट इज डिफरेंशियल सरफेस, व्हाट इज डिफरेंशियल लेंथ, देन इट इज अ बिग डिफिकल्टी फॉर अस। तो इसलिए इन फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जब समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, हम उसको सीधे न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। And what I suggest, everyone should remember the differential length vector, because once I remember the differential length vector, there will be no difficulty in writing the differential surface formula or differential volume formula in any of the coordinate systems. Okay, so I hope it is clear to you. तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और तीसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं r, थीटा एंड फाई, ठीक है। मतलब हमें एक स्फीयर अज्यूम करना है, और वो जो स्फीयर रहेगा हमारा, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस को हम हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने में बहुत आसान होता है। और अब आपको मानना है कि हमारा स्फीयर इस ऑर्थोगोनल सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। पर जब भी स्फीयर का एग्जांपल, मान लीजिए बॉल ले लूँ, बॉल यदि हमारे सामने रखी है, क्या हम पूरी बॉल को कभी देख पाते हैं? नहीं, तो 3D है ना। सिलेंडर हमारे सामने है तो हम उसका या तो फ्रंट व्यू देख पाएंगे, या तो टॉप व्यू देख पाएंगे, या तो बैक व्यू देख पाएंगे, है ना, पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल। तो उसी तरह स्फीयर का जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है वो मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है स्फीयर का, ठीक है। और यहाँ पे r को यदि समझना है तो एक वेक्टर है, ऑफ कोर्स रेडियस वेक्टर, रेडियल वेक्टर आप कह लीजिए, ये r है, इसकी लेंथ r है, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा आगे वही ar है, ठीक है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ar, और ये है r वेक्टर। ये एंगल जो बना रहा है z एक्सिस से, इस एंगल का नाम है थीटा, और इस एंगल थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ कोलैटिट्यूड, एंगल ऑफ कोलैटिट्यूड, ठीक है। और फाई वही है एंगल ऑफ एजिमुथ, ठीक है, जो अभी हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, वही है फाई। अब अंतर यहाँ पे समझने लायक ये है कि देखिए वेक्टर r है और z एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें? हम r का जो कंपोनेंट आएगा z में, z बराबर हम क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा। z बराबर क्या लिख सकते हैं हम? r cos थीटा। और r का एक sin थीटा कंपोनेंट आएगा जो xy प्लेन पे जाके गिरेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स r sin थीटा। ये क्या हो गया मेरा? r sin थीटा, which is making an angle phi with the x axis, ठीक है। You can also say that this is nothing but rho, this is nothing but rho। तो यहाँ पे रो बराबर मैं साइन r sin थीटा लिख सकता हूँ, रो बराबर r sin थीटा। तो अब आप देखिए ये जो रो है वो फाई एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो x बराबर मैं क्या लिखूंगा? x बराबर लिखना पड़ेगा रो cos फाई। y बराबर क्या लिखना पड़ेगा? रो sin फाई। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। x बराबर रो cos फाई, मतलब रो जो है उसके दो कंपोनेंट, हमने एक x एक्सिस में कंपोनेंट ले लिया, एक y एक्सिस में कंपोनेंट ले लिया। x बराबर रो cos फाई, y बराबर रो sin फाई। बट आप जानते हैं कि रो तो हमारा r sin थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं r sin थीटा cos फाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? r sin थीटा sin फाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दें, यू विल डेफिनेटली गेट आर स्क्वायर, ठीक है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल आएगा। इन द ब्रैकेट यू विल फाइंड cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, which is 1 according to trigonometric identity, and when you are getting r square sin square theta, when it is added with r square cos square theta, then again r square is common and sin square theta plus cos square theta will also be equal to 1. So x square plus y square plus z square is equal to r square. I think everyone can remember now, this is nothing but the equation of the sphere which you have studied earlier, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है क्लास 12th में, 11th में, जब 2D 3D मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो स्फीयर की इक्वेशन ही बताई जाती थी। बल्कि एक और होता था, ये तो उस स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस r है। अगर सपोज रेडियस r1 है
और सेंटर ABC है, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज टू आर माइनस R1 का स्क्वायर। आई होप एवरीवन शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। r थीटा फाई क्या होते हैं। अब बात हम करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि आपको डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लिखना है तो किस तरह लिखा जाए। उसे लिखा जाएगा dr ar प्लस r d थीटा a थीटा प्लस r साइन थीटा d फाई a फाई। प्लीज रिमेंबर दिस। और यहाँ पे भी जो आपको लग रहा होगा कि डी आर ए आर आ रहा है तो फिर डी थीटा ए थीटा आना चाहिए, फिर डी फाई ए फाई आना चाहिए। ये आर क्यों आ रहा है, आर साइन थीटा क्यों आ रहा है। आई ऑलरेडी मेड इट क्लियर टू यू। आर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हम आर की लेंथ जब निकालेंगे तो रेडियस आर काम करेगी, और यहाँ आर साइन थीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ जब हम आर्क की लेंथ निकालेंगे तो रेडियस आर साइन थीटा काम करेगी। दैट्स वाई वी आर हैविंग आर डी थीटा डिस्पाइट ऑफ डी थीटा, we are having r sin theta d phi despite of d phi, and here I am having only dr because dr is the length। ठीक है, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर इज इक्वल्स टू मीटर। जब हमारी यूनिट बैलेंस नहीं होगी तो फिर इक्वेशन किस काम का। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। तो आइए अब हम देखते हैं डिफरेंशियल सरफेस। और डिफरेंशियल सरफेस हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए r और थीटा को लेके बना रहे हैं, मान लीजिए थीटा और फाई को लेके बना रहे हैं, मान लीजिए फाई और आर को लेके बना रहे हैं, और फिर से वही रूल फॉलो होगा। ए आर कैप, ए थीटा कैप, ए फाई कैप, और जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे इफ वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, इफ वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, ये रूल फॉलो। तो आइए डी एस आर थीटा पहले और दूसरे का जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन निकलेगी वो उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर निकलेगी, क्योंकि एरिया हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कॉर्क स्क्रू रूल से हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर निकलती है जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, इजंट इट। सो आइए इन दोनों का करते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। आर डी थीटा ए आर क्रॉस ए थीटा, ए आर क्रॉस ए थीटा मीन्स यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, result will be a phi and positive, so here I can write a phi। क्या ds theta phi इन दोनों का करना है, तो r into r this will become r square sin theta and d theta d phi, और a theta cross a phi, a theta cross a phi is nothing but ar, so this is ar क्या। सिमिलरली phi और r का यदि मैं करता हूं तीसरे और पहले का, this will be r sin theta d phi dr, और a phi cross ar, a phi cross ar means again we are moving clockwise, the result will be a theta in positive। and suppose we are talking about differential volume, तो differential volume के लिए किसी भी एक differential surface को differential length के साथ आइए डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए, और डॉट प्रोडक्ट में हम हमेशा जानते हैं सिमिलर डॉट प्रोडक्ट का, सिमिलर वेक्टर या यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, यूनिट वेक्टर का i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1, ax डॉट ax, ay डॉट ay, az डॉट az 1, a रो डॉट a रो, a phi डॉट a phi, az डॉट az 1। Similarly, ar dot ar, a theta dot a theta, a phi dot a phi is 1. So, and remaining all are 0. So, if I take the first one, a phi dot ar 0, a phi dot a theta 0, and a phi dot a phi is 1. So, what I will get? R sin theta into r. So, this is simply r square sin theta dr d theta d phi. Okay. You can check by another also, no problem. Second आप लेते हैं, ar dot ar is 1, ar dot a theta 0, ar dot a phi 0. So देखिए r square sin theta d phi dr. Again you will get this. You can take third one also, a theta dot ar 0, a theta dot a theta 1, a theta dot a phi 0. Again you will get r sin theta into r square sin theta, and d phi dr d theta. Again you will get this. Okay. So this is differential length vector, this is differential surface, and this is differential volume.
In short, I have written dl, ds, dv. And if you want to get the mastery as far as the electromagnetic theory is concerned, you should be good enough in coordinate system, because हम जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, लाप्लासियन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, सब चीजों में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होने वाला है। हम यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं जानते, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं समझते, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमारे लिए एक दिक्कत है, तो ईएमटी हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, रिवाइज करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेंथ बनाएं, एंड देन यू विल फाइंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ great interest. You will find a great interest of yourself in this particular subject, and you will score 100% marks as far as this particular subject is concerned. Okay, have a look to the previous slide just to remember what we have studied in this particular class. Okay, so we have started with the coordinate system. In Cartesian coordinate system, there are three axes x, y, z, all are perpendicular to each other. Circular cylindrical coordinate system, three axes rho, phi, z, all are perpendicular to each other. Spherical coordinate system, r, theta, phi, all are perpendicular to each other. In any system, when all the three axes are perpendicular to each other, basically it is an orthogonal system. Okay, so all are orthogonal. In the next slide, I have given the introduction of Cartesian coordinate system x, y, z. किस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है, ax plus ay plus az, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ax डॉट ay 0, ay डॉट az 0, az डॉट ax 0, और क्रॉस प्रोडक्ट यदि करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा, और रिजल्ट क्या होगा, दो का हमेशा तीसरा। ax क्रॉस ay रिजल्ट इज az, बट ay क्रॉस ax रिजल्ट इज माइनस az, बिकॉज जब आप एक्स क्रॉस ए वाई कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और जब आप ए वाई क्रॉस एक्स कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि एक्स वाई जेड की लिमिट्स क्या हैं, दे आर इनफाइनाइट एक्सिस, लिमिट्स आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देयर इज अ टर्म सेमी इनफाइनाइट इन विच वी विल टॉक अबाउट 0 to infinity or minus infinity to infinity. What is the significance of x is equals to 0, y is equals to 0? We have seen that x is equals to 0 is yz plane, y is equals to 0 is zx plane, z is equals to 0 is xy plane, and all these things, which is very important in Cartesian coordinate system. Just revise all these. Then how to represent the differential length vector in Cartesian coordinate system, like dx ax plus dy ay plus dz is it, and how we can represent differential surfaces and differential volume in that. Okay, then circular cylindrical coordinate system, we have seen rho phi z, वेक्टर को कैसे लिखना है, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड, और फिर उसके बाद क्यों रो डी फाई वहां पे आया, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द आर्क लेंथ विच इज नथिंग बट एंगल इनटू रेडियस। फिर डिफरेंशियल सरफेस कैसे बनाना है, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे बनाना है। हाँ, इसमें एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहीं से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये रो है और ये है फाई, तो मैं यहाँ पे रिलेशन यदि लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई, ठीक है, और अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर। तो मैथ्स में आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एंड सी दिस इज द सर्कल, द बॉटम सरफेस एंड टॉप सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज नथिंग बट अ सर्कल, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। नाउ रो को यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो मैथमेटिक्स है। हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जा सकते हैं, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन में जा सकते हैं। इट इज ऑल simple mathematics. Okay, then the spherical coordinate system in which r theta phi, what is r, radius of the sphere, theta is the angle of co-latitude, phi is the azimuthal angle. Then how can we represent it, how we are getting z is equals to r cos theta, the projection, then x is equals to rho cos phi, y is equals to rho sin phi, rho is again r sin theta, then we get the x square plus y square plus z square is equals to r square, and of course if I want to write the radius, this is nothing but a square root of x square plus y square plus z square. Okay, then how we can represent the differential volume, differential surface, and differential length in a spherical coordinate system, drar plus dy, drar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi,
और एक बार यदि डिफरेंशियल लेंथ आपने याद कर लिया, चाहे कार्टेशियन हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, तो डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम बनाना बहुत आसान है और बनाना आना ही चाहिए, तभी हम सवालों को कर पाएंगे. और गेट, it is a graduate aptitude test in engineering, isn't it? And aptitude can only be checked by the numerical problems. So you have to be strong in numerical. ठीक है. और न्यूमेरिकल हम कैसे आपकी न्यूमेरिकल स्किल को डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे. यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट सीरीज generated by the TCube 3 faculties. Your participation is encouraging us. और EMT में भी इस तरह से न्यूमेरिकल बना के आप सब्जेक्ट्स को और भी अच्छी तरह से पुख्ता कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much for joining us and studying this particular subject, which is